Dear students, CBSE Economics Class 11. Today we are going to discuss about in this audio video, economic problems of an economy. So first of all, what do you mean by economy? An economy is a system in which people earn their living by performing different economic activities like production, consumption, एंड इन्वेस्टमेंट. मतलब इकोनॉमी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उस पूरे क्षेत्र के सभी लोग विभिन्न तरह का आर्थिक क्रियाकलाप करके, जैसे जो आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन, कंजम्पशन, उपभोग और इन्वेस्टमेंट विनियोग के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं और जीवन यापन करते हैं. तो वो एक एरिया हो सकता है, एक क्षेत्र हो सकता है, वो एक गांव भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है, एक देश. यूजुअली यहाँ इकोनॉमी का मतलब एक देश होता है, क्योंकि पूरे एक देश में, एक कंट्री में एक पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, एक इकोनॉमिक डिसीजंस काम करते हैं. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट एन इकोनॉमी, दैट मीन्स अ कंट्री. बिकॉज नाउ द डिफरेंट इकोनॉमी, देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. Usually there are three types of economy in this world. One is capitalistic economy, market mechanism economy. उसी का अलग नाम है. Capitalistic economies have other name market economy और price mechanism economy. यानी एकदम जो ओपन इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स पर डिपेंड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम है कि जो भी गुड्स एंड प्रोडक्शन है, वो आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना, वो आप ही प्रोड्यूस करोगे. क्या प्रोड्यूस करोगे, कितना प्रोड्यूस करोगे, क्या प्राइस रखोगे, ऑल द डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. और वहाँ पे डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से मार्केट डिसाइड करता है कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा. Now the second type of economy is socialistic economy और centrally planned economy और public sector economy. ऐसे इकोनॉमी में सारे economic activities गवर्नमेंट के द्वारा कैरी ऑन किया जाता है and they are not owned by the private individuals. All the production activity are being carried on by the government sector, the public sector only. And all the decisions of price, supply, production, demand, what to produce, how to produce, whom to produce, all are being taken by the government only. No entrepreneurs, no private individuals are allowed to carry on any economic activity. Just they can work as laborers. The third type of economy is mixed economy, an economy in which there are public sector producers as well as private sector producers. All have freedom to carry on economic activities. So mixed economy is an economy in which both public and private sector coexist to carry on economy activity. यहाँ लिखा है, in other words, as economy refers to the whole collection of production units in an area, किसी क्षेत्र विशेष में, geographical area या or political bond of a country by which people get their living. बिल्कुल तुम्हें बताया, इकोनॉमी का मतलब एक क्षेत्र या दायरा होता है. जैसे कि भारत एक देश है, तो यह भारत भी एक इकोनॉमी है. इकोनॉमी गांव का भी हो सकता है, बट यूजुअली इकोनॉमिक्स में जब बात की जाती है इकोनॉमी की, तो उसका मतलब एक देश ही होता है. An economy is classified into market economy, means capitalistic economy, planned economy, socialistic economy, and there is another economy, mixed economy. Okay. और फिर इकोनॉमी क्लोज्ड भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है. व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी that is a fully 100% self-dependent economy. It produces everything of its own and it neither exports nor imports from anyone else. It survives of its own. That is a closed economy. That is rare in today's world. Open economy are those economy which allows to import and export of goods and services from its economy and allow other economy to export them. तो यानी तीन तरह ओपन और क्लोज इकोनॉमी भी हम लोग समझ लिए.
मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस का प्रॉब्लम है, मतलब क्या कर रहे हैं, बहुत सारा चीज भर, बिजनेस करे क्या करे, अगर किसान है खेती करे, चावल की खेती, चावल में भी बहुत सारे वैरायटी, तो कौन सा वैरायटी हम प्रोड्यूस करें, ये डिसीजन लेना बड़ा समस्या है। सो ठीक ही कहा गया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हैज़ टू बी फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, बैकवर्ड इकोनॉमी हो, डेवलपिंग इकोनॉमी हो, सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, चॉइस प्रॉब्लम। ह्यूमन बींग्स हैव वांट्स विच आर अनलिमिटेड, या हमारे अनलिमिटेड वांट्स, हमारी इच्छाएं असीमित है। व्हेन दिस वांट्स गेट सेटिस्फाइड, न्यू वांट्स क्रॉप अप। जैसे आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो आपकी दूसरी इच्छाएं जागती है। ह्यूमन वांट्स मल्टीप्लाई एट अ फास्ट रेट, और हमारी चाहत, हमारी मांग दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहती है। द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर लिमिटेड, मतलब हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, संसाधन है जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेंगे, वो लिमिटेड है। यानी हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। इन अदर वर्ड्स, रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, they are defined as goods and services needed to carry out production, land, labor, capital, entrepreneurship। मतलब लैंड का मतलब ज़मीन पे उपलब्ध सारी चीज़ें, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन पर। लेबरर्स, सारे ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं काम करते हैं, वो लेबरर्स हो गए, चाहे वो टीचर के रूप में काम करे, चाहे एस के रूप में काम करे, चाहे स्वीपर के रूप में काम करे। कैपिटल, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे स्कूल चलाना हो, चाहे हॉस्पिटल चलाना हो, चाहे ग्रॉसरी का दुकान चलाना हो, या स्टील की फैक्ट्री खोलनी हो, हर एक को कैपिटल चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव, उसको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो उसको लीड करे, जो उसको गाइड करे, जो उसको सुपरवाइज करे, जो उसको नर्चर करे। ये सब दुनिया में स्कार्स है, लिमिटेड है, जितना चाहिए उतना नहीं है। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटीज़ इन रिलेशन टू द डिमांड, जितना इन सब की डिमांड है उस अपेक्षा में वो सीमित हैं। Resources are not only scarce but they are also alternative uses, they also have alternative uses। देखिए कितना अच्छा बात बताया कि रिसोर्सेस जो है दुनिया में, वो एक तो दूसरा कि वो लिमिटेड है, और दूसरी बात कि एक ही रिसोर्सेस के एक से अधिक कामों में प्रयोग लाया जा सकता है। तो उस सारे प्रयोग में से किस प्रयोग में कितना यूज़ करे या किस में नहीं करे, किस में करे, ये डिसीजन लेना भी तो एक प्रॉब्लम है। इसीलिए कहा गया चॉइस प्रॉब्लम। ऑल दिस necessitates a choice between which goods and services to produce first। इसलिए चॉइस प्रॉब्लम आ जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट गुड्स प्रोड्यूस करे, कौन सा सर्विसेज कैरी ऑन करे, कितना करे, कैसे करे, किसके लिए करे। द इकोनॉमी कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स एंड सोसाइटीज मस्ट मेक दिस चॉइस। कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, वहाँ के इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट हाउसेस या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी ऑन कर रहे हैं, दे हैव टू टेक डिसीजंस, दे हैव टू मेक चॉइसेस। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग। इट इज़ द problem of fuller and efficient utilization of the limited resources to satisfy maximum number of wants। मतलब प्रोफेसर रॉबिन्स महोदय कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये तो चॉइस प्रॉब्लम है, चुनाव की समस्या है। और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग, कम से कम खर्च में, कम से कम रिसोर्सेज को बर्बादी करके अधिक से अधिक सबसे अच्छा आउटपुट कैसे किया जाए, सबसे अच्छा प्रोडक्शन कैसे किया जाए, जिसको बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे बेच करके एक उचित लाभ कमाया जा सके और अधिक से अधिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स दिस सिचुएशन। और ये सब रिसोर्स की सीमित क्वांटिटी में होना इन सब समस्याओं की जड़ है। इफ़ एन इकोनॉमी एम्प्लॉयज मोर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एक्स, अगर कोई इकोनॉमी में मान लीजिए कोई वो अगर सिर्फ एक्स गुड्स की खेती ज़्यादा करे, एक्स का मतलब सपोज कीजिए अगर चावल की खेती ही ज़्यादा करेंगे
तो ज़मीन तो हमारे देश में फिक्स क्वांटिटी में है। मान लो हमारा 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन है देश में, और 4 लाख हेक्टेयर पे अगर हम 3 लाख हेक्टेयर में राइस की खेती करेंगे तो 1 लाख हेक्टेयर बच जाएगा उसी समय गेहूं की खेती करने के लिए, अगर उसी समय में साथ साथ करना है तो। नहीं तो एक टाइम में हमको अगर 4 लाख हेक्टेयर में पूरा चावल की खेती करेंगे तो दूसरे किसी चीज़ की खेती नहीं हो पाएगी। फिर अगर साथ साथ दूसरे को करना चाहते हैं तो चावल की खेती कब करके तभी दूसरे को दे सकते हैं, यानी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरा चीज़ खोना पड़ेगा। देन इसलिए यहाँ लिखा है कि इफ़ एन इकोनॉमी एम्प्लॉयज मोर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड एग्स देन इट विल हैव टू फॉरगो द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, तो उसको वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। हेंस इकोनॉमी हैज़ टू चूज विच ऑफ द टू गुड्स एक्स और वाई विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन, किससे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, किसका ज़्यादा मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, किससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसी आदि आदि बातें सोच के डिसीजन लिया जाता है। एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बोथ व्हीट एंड राइस ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, एक ही ज़मीन पर हम चावल और गेहूँ दोनों की खेती कर सकते हैं, लेकिन कितना हिस्सा ज़मीन गेहूँ को दे कितना हिस्सा चावल के लिए रखे, ये डिसीजन लेना ही हो गया चॉइस प्रॉब्लम। तो इसको समझिए, फिर बाद में हम लोग अगले में समझेंगे काउजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। थैंक यू।